Today we are going to start with a very important and a very unique chapter. This chapter is basically a conversation, in fact. You cannot even call it as a chapter, but this is actually a conversation. Means it's actually between two people, that is Derry, जिसका real name है Derek, and an old man जिसका नाम था Mr. Lamb. Now, ये जो दो जने हैं, Lamb, who is an old man, and Derry, who is a young boy, दोनों बिल्कुल opposite हैं in age and even in their thoughts. Derry एक छोटा सा बच्चा है who has faced an acid attack. Means acid attack तो नहीं, he had an accident जिसमें acid fell over his face and he had a disfigured face. उसका जो face था वो disfigured था. Whereas जो मिस्टर लैम्ब है उनके पैर टूटे हुए थे. He had a blown off leg in a battle, in a war. But Mr. Lamb had a complete positive approach towards his life. तो जो हमारा इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट थीम है वो है आपका ऑप्टिमिज्म. The first theme of this chapter is optimism, means having an optimistic approach towards life. Derry छोटा बच्चा है and he had a pessimistic approach towards life. Due to this accident, अब आपको पता है नॉर्मली सबके साथ ऐसा होता है कि इफ यू आर नॉट लाइक अदर्स, अगर आप दूसरों के जैसे नहीं हो, इफ यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ देम. आप उनके पार्ट नहीं हो. पीपल डोंट एक्सेप्ट. हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, इवन इन अवर ले लैंग्वेज ऑल्सो, वी यूज slang words for such people. हम कभी उनको, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है दिव्यांग बोलिए आप, डोंट कॉल देम हैंडीकैप, बिकॉज हैंडीकैप का मतलब होता है व्हेन यू आर मतलब कि नॉट केपेबल. आप उनको बोलिए पीपल विथ स्पेशल नीड्स. आप उनको बोलिए पीपल विथ स्पेशल नीड्स. बट वी डोंट एक्सेप्ट देम. वी डोंट यूज दोज वर्ड्स. हम यूज भी करें तो वी डोंट हैव दैट, you know, that kind of generosity, that kind of feelings for them. This chapter, on the face of it, on the face of it is a proverb. It's a proverb. On the face of it means overall. ऊपर से, on the whole. ये पेपर में आया हुआ है and it has not come only in the boards but also in your CUET. On the whole. On the whole मतलब in all. Now this is कि ये जो डेरी है वो he sneaks into the garden of Mr. Lamb and वहां पर Mr. Lamb उसको देख लेते हैं. Derry is embarrassed because he did not want to face Mr. Lamb. उसको लगता है उसका जो चेहरा है it is very very ugly and he doesn't want people to see him. And secondly, till now those who had been with him, even his own parents, they had always been worried about him. वो लोग उसकी सिर्फ उसके बारे में सोचकर दुखी होते थे. तो उसको लगता है कि if he would face anyone, he is going to be, insulted.
therefore he doesn't prefer to come in front of anyone. लेकिन मिस्टर लैम्ब उसको देख लेते हैं and he doesn't speak about. मिस्टर लैम्ब की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, आपके पेपर का क्वेश्चन है what draws डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब, मतलब ऐसा क्या था कि डेरी जो है मिस्टर लैम्ब की तरफ खिंचा हुआ चला गया. And the reason was Mr. Lamb had a positive approach and he doesn't speak about his disfigure. वो उसे जनरल बात करता है. He welcomes, he tells about himself. वो खुद के बारे में बात करता है. He tells that he plants, मतलब वो जो है अपने गार्डन में प्लांटिंग करता है. He loves to have the beehive. उनके हनी से वो अच्छी अच्छी चीजें बनाता है. And then whenever he gets time, he reads book. Derry is completely surprised to see a man जिसने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, जो उसको देखकर who is not making a frowning face. But yet he was not that much convinced. तो वो मिस्टर लैम्ब को कहता है कि हाँ, you have a positive approach because you are having a whole body. तो वो कहता है no, even his own leg had been blown off in a war. अब थोड़े टाइम के लिए तो मिस्टर डेरी को लगता है कि ओ अच्छा उसके भी जो मतलब की पैर है, लेकिन फिर वो कहता है यू कैन हाइड योर लेग्स विद द ट्राउजर्स बट आई कांट हाइड माय फेस. ही continuously has a negative approach. मिस्टर लैम्ब उसको कहानी सुनाते हैं ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट. ब्यूटी एंड द बीस्ट इज अ फेरी टेल एंड इन दिस जो ब्यूटीफुल गर्ल होती है शी टर्न्स दैट बीस्ट इनटू अ प्रिंस विद हर सिंपल टच. लेकिन वहां पर उसका एक व्हाट वी से ट्रांसफर्ड एपिथेट मीनिंग है. दैट ब्यूटी हियर इज गुडनेस एंड बीस्ट इज द व्हाट वी हमारे अंदर के जो इविल हैबिट्स हैं. तो जो गुडनेस होती है इट ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर इविल. वो ये कहानी सुनाना चाहता. वो कहता है कि योर डिसफिगरमेंट इज नथिंग, यू शुड बी गुड बाय योर हार्ट. लेकिन वो बार बार यही कहता है कि माय पेरेंट्स आर वरीड कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा. वो कहता क्यों, आपके सिर्फ मुंह पर एक मतलब कि देयर इज डिसफिगरमेंट, you are whole on your body, you have legs, you have hands, work, study, अपनी जिंदगी बनाओ, you are like anyone. डेरी थोड़ा सा तो he comes into his word, उसको लगता है because till now Mr. Lamb has not been, nobody has been in that way. लेकिन उसको ये भी लगता है कि Mr. Lamb is trying to change the topic of the conversation. He tells everything. Mr. Lamb उसको जो है पूरी तरीके से बताते कि everything is created by God. And when we talk about the plants, we have plants and weeds. Now what is this, ये जो इसकी जो यहाँ पर definition उसने दी है ना, plants and weeds, what is it? Weeds are also plants, लेकिन इनको हम unwanted बोलते हैं. है तो वो प्लांट्स ही ना, ये तो हमने उनको अनवांटेड बोला है. बट अगर हम देखा जाए तो वीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स. तो मिस्टर लैम्ब जो है उसको ये एग्जांपल्स देते हैं दैट हाउ वी डिफरेंशिएट. एंड ही आल्सो टेल्स दैट people call him as Lammy Lamb, people make fun of him, people also speak ill of him. डेरी को थोड़ा सा अच्छा लगता है even though he is worried about the nasty things that is being told. लेकिन मिस्टर लैम्ब कहते हैं don't listen to anyone, be what you are. आप जो हो आप उसको देखो. if you want, मतलब यहाँ पर मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि if you want you can do anything and if you want you can help me also. वो उसे पूछता है आप क्या करते हो, वो कहता है मैं बी के बजिंग को सुनता हूँ, बर्ड्स के
मतलब कि आवाजों को सुनता हूँ. एंड आई टेक अप द क्रैब एप्पल्स, आई मेक द जेली आउट ऑफ देम. इफ यू वांट यू कैन जॉइन मी. नाउ डेरी को ये सारी बातें अच्छी लगती हैं. मिस्टर लैम ये भी बताते हैं कि ही हैज अ हाउस बट नो कर्टेन्स. पेपर का क्वेश्चन है. पेपर का क्वेश्चन है. कर्टेन जो है दैट इज टू हाइड समथिंग. कर्टेन यहाँ पर जो है इट इज अ व्हील. इट्स समथिंग टू हाइड. वो कहता है मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं. I don't want to hide anything. I'm open. Anyone can come to my garden. Anyone can play over. Anyone they wish they can stay here or go. तो डेरी उनको बड़ा क्यूरियस होता है. वो कहता है कि ऑल एवरीवन योर फ्रेंड्स. कहता हाँ, दे आर नॉट माय एनिमीज आल्सो. तुम सबका नाम जानते हो तो क्या फर्क पड़ेगा किसी का नाम क्या है. एंड दस मिस्टर लैम्स कॉन्वर्जेशन, हिज वर्ड्स, हिज थॉट्स जो है वो स्लोली स्लोली डेरी के परसेप्शंस को चेंज करते. फिर मिस्टर लैम जो है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो. लेकिन डेरी कहता है नो, आई हैव टू गो बैक बिकॉज माई मॉम वुड बी वेटिंग फॉर मी. तो वो कहता है कि फिर तुम वापस नहीं आओगे. फर्स्ट तो जो डेरी है वो कहता है कि मैं कैसे आऊंगा, आई स्टे टू फार. तो मिस्टर लैम कहते हैं तो यू हैव लेग्स. वो कहता है बट माई पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ मी. तो कहता है दैट इज यू. इफ यू हैव द विल पावर यू कैन. अगर तुम खुद कुछ नहीं करना चाहोगे तो आपको कोई कुछ भी कह लेगा, यू आर नॉट गोइंग टू डू. सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. नाउ डेरी गेट्स एजिटेटेड. बेटा मैं आपके जैसा नहीं हूं. आई एम नॉट लाइक यू. आई हैव लेग्स. यू डोंट हैव लेग्स. मैं वापस आऊंगा. मिस्टर लैम कहते हैं एवरी वन सेज बट नो वन कम्स. क्योंकि कोई आना ही नहीं चाहता है. अब डेरी अपने घर जाता है and he tells all this to his mother, and he also conveys that he wants to go back to Mr. Lamb. तो उसकी जो मदर होती हैं she dissuades him कि हम लोग यहाँ पर न्यू है तो you should not go back. वो कहता है नो, आई वॉन्ट टू गो बैक. उसकी मम्मा उसको समझाती उससे पहले वो वहां से निकल के चला जाता. एंड ही रीचेस द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम एज प्रॉमिस्ड. There, उस वक्त में when he reaches, Mr. Lamb is picking up the crab. He has climbed a ladder which was broken. Suddenly, the ladder breaks up. Mr. Lamb falls down. And जब वहां पर वो डेरी वहां पहुंचता है तो मिस्टर लैम्ब इज डेड. दो मिस्टर लैम्ब इज डेड, लेकिन वो जो रोना होता है उसका, द क्राइंग ऑफ डेरी एंड हिज कमिंग बैक shows that Mr. Lamb had changed Derry's perception. He had changed him into an optimistic man before he had gone. So this is the chapter, what it tells to accept ourselves for what we are. It's a chapter based on positive approach. See, in the life, everything is not going to be bed of roses. आप जैसा चाहते हो वैसे लाइफ नहीं होती है. आप जैसा चाहते हो वैसी लाइफ नहीं होती है. Sometimes it is better that we accept accidents are part of our lives. Failures are parts of our lives. So we need to accept what we are. We need to identify ourselves. We need to have a positive approach. I'm not saying self-contentment, but I'm saying that we need to accept. And acceptance is our flaws. Acceptance is not only about your problems, it is also about our flaws. अगर हमारे अंदर कोई गलती है, if we are having something, it's okay. We should not say नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. I am all. No one can be a perfect person. Everyone has some flaw. There might be 1, 2, 3. We must accept and move. That's what our scriptures also teach us. तो ये जो chapter है, what we call as on the face of it, it deals with the themes of optimistic approach,
and also acceptance. It talks about the child who is a small child who doesn't understand life. 13-14 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता है, yet he strikes up with a friendship with an old man. यहाँ पर ये जो फ्रेंडशिप हम बोल रहे हैं ना, this is not that cool friendship. This is a friendship where there is maturity, a friendship where there is understanding. What is the difference between a friend and anyone else? Friends हमारे होते हैं who are non-judgmental. Friends can be said as non-judgmental. They will not be judging you on the basis of your color, creed, or your money. Friend is friend. तो यहाँ पर how a small meeting, आपके पेपर का ही ये क्वेश्चन है, a small meeting with an old man completely changes the life structure of a child. So this is the chapter on the face of it, written by Suzanne Hill. So let us start. As I said, this chapter is more a conversation. It's not actually a complete story. Mr. Lamb's garden, मतलब ये जो पर्दा खुलता है, तो this is where it has been set up. It has been set up in a garden. There is occasional sound of bird song, a tree leaves rustling, मतलब आवाज आ रही है पत्तों के गिरने की. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. धीरे धीरे चोरी चोरी वो चल रहा होता है. He pauses, रुकता है, फिर चलता है. And so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. और तभी क्या होता है, वो वहां पहुंचता है और मिस्टर लैम्ब उसके सामने आ जाते हैं. Now why he is startled? Because he did not expect Mr. Lamb to be there. उन्होंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. अब मिस्टर लैम्ब उसको कैसे बोलते हैं, कहते माइंड द एप्पल्स. अरे ध्यान से, वहां पर एप्पल्स गिरे हैं. और वो कहता हु व्हाट, हु इज दैट? द लैम्ब, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर. Wind falls in the long grass, you can trip. You can trip मतलब आप उसको छलांग लगाकर you can just leap over there. I thought this was an empty place. I did not know there was anybody here. That's all right. I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. लेकिन Derry was scared. He says, मुझे तो लगा था एक empty house है. तो कहता हाँ, the house is empty. देखो, वो देखो, घर देखो, मैं तो गार्डन में हूँ. मतलब he speaks in a humorous tone. Here his tone is bit humorous. वो कहता है घर तो खाली है भाई. बिकॉज वो कहता है ना एम्प्टी हाउस, तो वो कहता है हाँ घर तो खाली है, मैं तो बाहर हूँ. It's empty until I go back inside. In the meantime, I'm out here likely to stop a day like this beautiful, not a day to be indoor. कहते कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा दिन है, मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगा, मुझे अंदर रहना नहीं पसंद है. Now Derry is panicked. वो कहता नो नो मुझे तो जाना है. Not on my account. I don't mind who comes into garden. Not on my account means not from my side. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता who comes into the garden. The gate is always open. Only you climb the garden wall. यहाँ पर यही पेपर में क्वेश्चन आता है कि why did he climb it? मतलब उसने ओपन डोर से क्यों नहीं क्लाइंब किया? क्योंकि he was scared. या how did he enter into the garden? By climbing the garden wall, not through the door which was open. अब डेरी जो है गुस्सा करता है, ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है. यू आर वाचिंग मी, होता है या आई सॉ यू बट द गेट इज ओपन, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग. वो कहता है लेकिन दरवाजा तो खुला था. कहता आई डू नॉट कम, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग. नो नो, आई द यंग लैड स्टील स्कम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग. वो कहता है हाँ बच्चे आते हैं. यंग लैड्स मीन्स यहाँ पर उसके कहने का मतलब है जो छोटे बच्चे होते हैं, normally they steal the apples.
इवन दे उस पे पैर भी रख दी। बट तुम ऐसे नहीं हो, तुम थोड़े बड़े बच्चे हो, तुम समझदार हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। ठीक है, तो वी आर हेयर। सीधा, यू डोंट नो हु आई एम? हाँ, a boy, 13 or so. Now he's having full attitude. 14, 13 नहीं, 14। और अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। किस बात पे डर रहे हो? आए हो तो बैठो। मतलब बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। मतलब मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। मतलब क्यों? Everyone is, it doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. वो कहता है मुझे सब पता है। नाउ ही इज हैविंग an agitated tone. His tone is bit despiteful. थोड़ा हेट्रेड है। उसके जो टोन है वो थोड़ा डिस्पाइसफुल है। आपके पेपर में सारा कुछ आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ टोन ही वाज हैविंग। वो कहता है मुझे पता है किस तरीके से वो प्रिटेंड करते हैं, बट नो बडी। कहता क्या? तो व्हाट दे थिंक। कहता व्हाट डू दे थिंक? यू थिंक हियर इज अ बॉय? तुम्हें क्या लगता है मैं लड़का हूँ? यू लुक एट मी, देन यू सी माई योर फेस, माई फेस, एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द ugliest थिंग आई एवर से। यू थिंक poor boy, but I am not. Not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. When I look into the mirror and see, I am afraid of me. तो वो डैडी कहता है कि क्या सोचते हो? तो मेरी तरफ देखोगे तो मेरे चेहरे को देखोगे, कितना मतलब कि अगली हूं मैं, दैट्स द अगलीस्ट थिंग। फिर तुम सोचोगे बेचारा। पुअर बॉय मीन्स मतलब कि हैविंग द सिंपथी, बट आई एम नॉट। मैं कोई बेचारा नहीं हूं, नॉट पुअर। यहाँ पर द पुअर इज नॉट रिलेटेड टू मनी, हियर इट इज फॉर द सिंपथी, बेचारगी। फिर बट अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, लेकिन अंदर ही अंदर तुम डरे हुए हो। हर एक डरा होता है, मैं खुद डरता हूँ। व्हेन आई लुक एट द मिरर, इवन आई एम अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ। नाउ ही justifies that why people are afraid of him. No, not the whole of you, not of you। मतलब नहीं, मैं तो नहीं डरा। कहता यस। फिर मिस्टर लैम कहता लेटर ऑन व्हेन इट इज बिट कूलर। मिस्टर लैम जो है यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर दे। ही डजंट स्पीक अबाउट हिज, मतलब वो जिस तरीके से हेट्रेड अपने बारे में बोल रहा होता है, द डिस्पाइसफुल टोन, ही डजंट टॉक अबाउट दैट, ही नोज दैट। लेकिन वो being an elderly person, he also knows, being an elderly person, he also knows कि when someone is troubled, we should not speak in that tone। तो वो कहता है जब थोड़ी ठंडा हो जाएगा ना, तो I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples। मतलब he just changes the topic। They are ripe for it, I make jelly, it is good time of year, September, look at them, orange and golden, that's a magic fruit, I often say, but it is best picked and made into jelly, you could give me a hand। वो कहता है अभी थोड़ी देर में थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना मौसम, तो फिर हम दोनों मिलकर ना एप्पल्स निकालेंगे, मैं जेली बनाऊंगा। देखो जेली, ये वाले एप्पल्स कितने अच्छे हैं ना। आ- तुम चाहो तो तुम मेरे को हेल्प कर सकते हो। यू कुड गिव मी अ हैंड मीन्स यू कैन हेल्प मी। यू वुड बी फाइंडिंग लॉट्स ऑफ phrases in this chapter। Now Derry says, what have you changed the subject for? People always do that, why don't you ask me? क्यों टॉपिक को चेंज कर रहे हो भाई, पूछो। Why do you? What they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking at mine and get upset, I'll tell you, you don't ask me because you're afraid to। Now, Derry जो है, as I have told, he had a complete pessimistic approach। Therefore, his tone is also very much furious। वो कहता है हाँ, क्यों नहीं पूछ रहे हो, पूछो। कहता है यू वांट मी टू आस्क। कहता आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। कहता चलो, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो पूछो, चल बताओ। वो कहता है मुझे लोगों से नफरत है। आई शुड से, टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। एक मतलब तुम, आपको देखकर लग रहा है कि आपका चेहरा जला हुआ है। नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस
It burnt it all away. It, sorry, it ate my face up. उसने सिर्फ मेरे चेहरे को जलाया नहीं, वो मेरे चेहरे को खा गया. Ate my face up मतलब it completely destroyed. It completely destroyed my face. It ate me up. उसने सिर्फ मेरे चेहरे को नहीं डिस्ट्रॉय किया. It destroyed me. And now it is like that. It won't ever be any different. और अब ऐसा है और अब ये कभी ऐसा मतलब कि ये चेंज नहीं होगा. He has full of regret. He is full of, you can say, sorrow, anguished. No. Aren't you interested? वो कहना, you are a boy you who came into the garden. Plenty do. I'm interested in anybody, anything. There is nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? वो कहता है देखो मुझे हर चीज में भगवान ने सब चीजें बनाई है. Everything is being made by God. So anything which has been made by God is beautiful and I'm interested in everything. मतलब वहां देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? होता रबिश. अब ये हमारा यहाँ पर जो है, इट इज अवर विजन. हम हिंदी में कहते हैं ना हमारा नजरिया. when we talk about the Mahabharat's very famous episode of marriage of Arjun, तो बाकी लोगों ने क्या देखा था? मछली. एंड अर्जुन जी ने क्या देखा था? मछली की आंख. तो वही हमारा नजर और नजरिया में फर्क होता है. What you see is your vision. How you see it is your vision. Rubbish, देखो, just graph and stuff and weeds. ये आपके बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Many a times question has come from this section. Many a times. वो कहते हैं क्या है वहां पे? घास है, घास फूस. और weeds, weeds क्या होते हैं? Unwanted plants. Weeds are unwanted plants. I know you all know, but just I'm writing it. Some call them weeds if you like. A weed garden. लोग तो weed garden भी बनाते हैं. There is a fruit, there are flowers, trees, herbs, all such. But over there, weeds, I grow weeds there. Why is, ये देखिए बहुत important. Why is one green growing plant called weed and another flower? What is the difference? It is all the life growing now, same as you and me. This particular passage has a $1 million meaning. ये हमारा नजरिया है. दिस इज हाउ वी सी. एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को हम अनवांटेड वीड बोलते हैं और दूसरे को हम फ्लावर बोलते हैं. तो ये हमारा है ना, बिकॉज वी हैव थॉट कि दैट इज यूजफुल टू अस एंड दैट इज यूजलेस, तो वी कॉल इट अनवांटेड एंड अनदर वन एज वांटेड. बट है कोई डिफरेंस? वो भी एक पौधा है, वो भी एक पौधा है, दोनों में लाइफ है. सिमिलरली यू आर ऑल्सो ह्यूमन, आई एम ऑल्सो लाइफ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन. तो वाई वन पर्सन इज सेड टू बी wrong and मतलब कि disfigured another one whole? So this is our vision. Whether we are not same. But you, I'm old, you are young. You have got a burnt face. I've got a tin leg. You are standing there, I'm sitting. बताओ क्या है? हम दोनों में क्या डिफरेंस है? Now he jokes. He in a humorous manner says, क्या है फर्क बताओ? मैं बूढ़ा, तुम यंग. तुम्हारा चेहरा जला हुआ, मेरे पैर टूटे हुए. तुम बैठ खड़े हुए, मैं बैठा हूँ. यही तो डिफरेंस है. Why have you got a tin leg? The real one got blown off years back. Lay me lamb, some kids. Haven't you heard them? You will lay me lamb. It fits. Don't trouble me. Doesn't trouble me. वो कहता है अरे सालों पहले जो है, in a war it was blown off. लोग, तुमने सुना नहीं है लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम. ठीक है, मुझ पे फिट भी करता है, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट पहले तो डेरी को थोड़ा सा ही फील सिंपैथेटिक कि उसके पैर जो है वो नहीं है. बट द नेक्स्ट मोमेंट ही सेज व्हाई हैव यू गॉट इट? वो कहता है बट यू कैन पुट ऑन योर ट्राउजर्स, कवर इट अप एंड नो वन सीज एंड दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर. बता लेकिन तुम अपने पैरों को छुपा तो सकते हो ना. बट ऐसा नहीं होता ना. इफ अ पर्सन इज लेमिंग, तो डोंट वी नोटिस इट? वी डेफिनेटली नोटिस. Some do, some don't. They get tired of in the end. There is plenty of other things to stare at. वो कहता है भाई कुछ लोग
स्टेयर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और फिर कितने दिन तक कोई आपके पीछे रहेगा? फिर एक दिन वो थक जाते हैं, और दुनिया में और भी तो चीजें, बेटा, हाँ, जैसे मेरा चेहरा, फिर वो उस चीज को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता, लाइक क्रैब एपल्स, वीड्स, स्पाइडर क्लाइंबिंग अ सिल्कन लैडर, माय टॉल सनफ्लावर्स, थिंग्स, इट्स ऑल रिलेटिव। ब्यूटी एंड बीस्ट, ये भी आपके पेपर में आया था कि व्हाई डज डेरी जो मिस्टर लैम रिसाइट द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड बीस्ट? एज आई सेड, ब्यूटी एंड बीस्ट बेसिकली बताता है कि जो बीस्ट होता है वो हमारे अंदर होता है, दैट्स इनफ, and when goodness comes over, that beast comes out. What's all supposed to mean? You tell me. You need not think they haven't all told me that fairy story. तुम ये मत सोचना मुझे ये कहानी नहीं आती है. It is not what you look like, it is what you are inside. अब वो कहानी का जो थीम है वो बताता है. कहता है मैं समझता हूँ, तुम जो जैसे हो वो नहीं, जो तुम अंदर हो वो. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself. When she kissed, he changed into a handsome prince. वो कहानी का समरी जिस बताता है कि वो जो ब्यूटीफुल थी, she loved the monstrous beast, and when she kissed, he changed. कहता but only he wouldn't. He would have stayed a monstrous beast. I won't change. लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा. Things will not be like that. In that way, no one will kiss me ever. Only my mother, and she kisses me on the other side, and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? वो कहता है मुझे कोई भी इस तरीके से प्यार नहीं करेगा. नो वन विल, यहाँ पर बच्चा प्लीज डोंट टेक दिस इन द अदर सेंस, यहाँ पर नो वन विल एक्सेप्ट मी एज आई एम. यहाँ पर जो मीनिंग है वो है नन विल एक्सेप्ट मी एज आई एम. इवन जो मदर है, शी ऑल्सो kisses him on the other side because वो मदर है. I don't care if nobody ever kisses. मतलब but do you care if you never kiss them? मतलब गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, पीपल यू लव, तुम भी चाहते हो किसी को प्यार करना. यू ऑल्सो वॉन्ट समबडी टू बी देयर. मतलब हु वुड लेट मी नॉट वन? हु कैन टेल what will happen tomorrow? Nobody. I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. वैसा कुछ भी चेंज नहीं होगा. मतलब हाउ मच हेट्रेड ही हैड इनसाइड हिम, यू कैन जस्ट इमेजिन कितना रिपल्सिव था वो. He said nothing will change even over the period of years. So you will, but the world won't. The world has got a whole face, and the world there is to be looked at. Do you think this is the world, this old garden? When I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. बता तुम क्या सोचते हो, ये तुम्हारी पूरी जो ये जो छोटा सा गार्डन है तुम्हारी दुनिया है? बेटा हाँ, जब मैं यहाँ हूँ तो ये मेरी दुनिया है. नॉट द ओनली वन, ये सिर्फ मेरी दुनिया नहीं है, बट मैं जहां पर भी रहता हूँ दैट इज माई वर्ल्ड. फिर वो डैडी पूछता डज योर लेग हर्ट? टिन डजंट हर्ट बॉय. तो व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? कहता हाँ, तब तो हुआ था. मीन्स वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप. नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई. कहता जब वो टिन को आप निकालते हो तो दर्द होता है? तो हाँ, जब थोड़ा मौसम खराब होता है तब, बट इतना फर्क नहीं पड़ता. Oh, that's something else. They all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry, never complain and don't feel sorry for themselves. अब वो जो है चिढ़ाता है. He is teasing. उसका जो टोन है यहाँ पर टीजिंग है. बता हाँ हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना, देखो अपने से उन उन लोगों को देखो. नॉर्मली हम ऐसे ही कंसोल करते हैं ना कि तुम इतनी सी बात पे डर गए, देखो उन लोगों को देखो, उनका तो सब कुछ चला गया फिर भी देखो वो खुश है. नॉर्मली वी कंसोल पीपल लाइक दैट. पता है ऐसे ही तो लोग कंसोल करते हैं. सी दोज हु आर वेरी प्रेन. तुम मतलब तुम वही चीज बताना चाहते हो ना कि वो अपने बारे में कभी सॉरी फील नहीं करते. मिस्टर लैम कहता आई हैवंट सेड, मैंने तो ऐसा नहीं कहा. एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू. थिंक you might have been blinded, born deaf, live in a wheelchair or daft in your head dribble. वो चिढ़ा रहा होता है, वो आगे भी बोल रहा होता है. वो कहता है हाँ नहीं नहीं, यही तो बोलते हैं
तुमसे तुमसे जो मतलब कि वर्स्ट है उनके बारे में सोचो। सोचो अगर तुम अंधे पैदा होते, गूंगे पैदा होते, बहरे पैदा होते, या फिर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होता, सोचो। सब लोग मुझे ऐसे तो कंसोल करते हैं। वो कहता है दैट्स ट्रू एंड यू नो इट, it won't make my face change. Do you know? One day, woman went by me in the street. I was at a bus stop. She was with another woman. She looked at me and whispered, "Look at that terrible thing. That's a face only a mother could love." कहता है कि मैं एक दिन मतलब कि बस स्टॉप के पास था, तो वहां पर टू women were there and they just made fun of me. तो कहता so you believe everything you hear? कहता लेकिन it was cruel. मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, लेकिन तुम्हें उनकी बात सुनने की जरूरत क्या थी? व्हाट वाज द नीड टू व्हाट दे वर स्पीकिंग अप? ओनली आई हर्ड। कहता एंड इज दैट ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? कहता ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो अब अपने कान बंद करके रखो। मतलब कहने का मतलब है पीपल वुड से, but we need to accept what we are. We should not bother about what others are saying. If we move on thinking that what people are going to think, then believe me, class 12, आप जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। Yes, we have to live in the society. We need to abide by the society, but that doesn't mean दूसरों के हिसाब से हम हर चीज करें. Certain things have to be according to our situation. You're peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. वो कहता है, I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at the gate is. तो तुम बड़े ही अजीब हो भाई, अजीब अजीब सी चीजें कहते हो, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो। वो कहता है मुझे अच्छा लगता है बात करना, तुम्हें नहीं करना तुम जाओ। कहता है यस, आई हैव अ hive of bees behind those trees. Some hear bees, they say bees buzz. But when you listen to them, they hum means sing. मतलब ये आपकी सोच है। अगेन ही इज डिफरेंशिएटिंग। कोई कहता है कि जो मधुमक्खी है वो भिन भिना रही है, बट मेरे लिए वो गाना गा रही है। तो एक इंसान के लिए किसी का बोलना भिन भिनाना हो सकता है, मेरे लिए दैट मे बी अ सॉन्ग, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इट बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम। लेकिन अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो नहीं आता। नो नो, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब क्या होता है? एंटरिंग एनीवेयर विदाउट परमिशन। Oh, that's not why. I don't like being near people when they stare. I see them being afraid of me. ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लोग इसलिए मैं नहीं आता क्योंकि मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे घूरते एंड इट फील दे आर अफ्रेड ऑफ मी। अब वो एक कहानी सुनाता है चाइनीज का, बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब कि वेरी फिलोसफिकल। यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, नेवर लीव इट। मतलब देखो ये आपके ऊपर है। अगर आप सबके बारे में सोचकर अपने आप को बंद कर लोगे, वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा सोचेगा, तो कुछ नहीं होगा। जिस जो चीज होनी होगी ना, वो आप जहां पर भी रहोगे वहीं पर होगा। देयर वॉज अ मैन हु डिड इट। ही वॉज अफ्रेड, you know everything. A bus might run him over. A man might breathe deadly germs on it. A donkey might kick him to death. A lightning might strike him. He might love a girl and the girl will leave him. He might slip on a banana skin, feel fall and people would laugh there. मतलब उस इंसान को हर छोटी चीज से डर लगता है। उसे लगता था बस उसके ऊपर चढ़ जाएगी, लोग उसके ऊपर जर्म्स फेंक देंगे, कोई उससे प्यार करेगा उसको छोड़ के चला जाएगा, डंकी आकर उसको मार देगा। मतलब उसको डर लगता था वो बाहर निकलेगा तो कुछ हो जाएगा। सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लॉक द डोर एंड गॉट इनटू बेड एंड स्टेड देयर। तो उसने अपने आप को बंद कर लिया, बस। तो कहता फॉर अ वाइल। फिर कहता कुछ नहीं, अ पिक्चर फेल ऑन द वॉल एंड ही किल्ड हिम। डेरी लाफ्स द लॉफ। अब डेरी बहुत जोर जोर से हंसता। वो कहता भाई जिसको जिस चीज को होना होगा ना, इट विल हैपन। इफ यू थिंक दैट दिस विल हैपन बिकॉज ये ऐसा हो रहा है, अगर आप इतना कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरीज लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है।
You see, but you still say peculiar. The peculiar to do. Now what do you do? All things. अब वो थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होता है. Whether sit in the sun, read books. You thought it was an empty. It is full of books, other things, full. कहता बट देर आर एंट एनी कर्टेन्स. नाउ ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कर्टेन्स जो है दे सिग्निफाई देर इज नथिंग टू हाइड. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स. शटिंग थिंग्स, shutting things, I like the light and the darkness and window open to hear the wind. Yes, I like that. When it is raining, I like to hear it on the roof. So you are not lost. यहाँ पर you are not lost मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी से बिल्कुल होपलेस हो गए हो. You have not become hopeless completely. You do hear things, you listen. मतलब you are still having the hope. होता है they talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? यहाँ पर जो they है, it is referred to their his parents and family members. Parent आया हुआ पेपर में. What's going to happen to him when we have gone? However will he get on in this world looking like that with that of his face? वो लोग ऐसी बातें करते हैं. जब हम नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा, कैसे रहेगा वो? The Lord, हे भगवान, boy, you have got two arms, two legs, eyes, ears, tongue, brain. भाई तुम्हारे पास सब कुछ तो है. तुम्हें जो चाहिए सबके जैसा तुम्हें मिलेगा. एंड इफ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू, यू कैन गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट. एंड अगर तुम चाहो तो तुम दूसरों से ज्यादा कर सकते हो. वेयर देर इज अ विल, देर इज अ वे. अगर आप चाहो तो यू कैन. हाउ? जैसे मैं करता हूँ. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स नाउ? बड़े लोगों को फ्रेंड्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. छोटा बच्चा तो हमेशा फ्रेंड्स के लिए रहता है. कहता हाँ, हंड्रेड्स. बट यू लिव बाय योर सेल्फ. इट्स अ बिग हाउस टू. कहते बट कहाँ है? फ्रेंड्स एवरीवेयर. पीपल केम कम इन. एवरीबडी नोज मी. द गेट इज ऑलवेज ओपन. वो यहाँ आते हैं. सर्दियों में फायर में बैठते हैं. किंग्स किड्स यहाँ आते हैं पियर्स के लिए, एप्पल्स के लिए. टॉफी बनाता हूँ उसके लिए आते हैं. जैसे तुम. कहते बट आई एम नॉट अ फ्रेंड. होता है बिल्कुल. सो फॉर आई एम कंसर्न व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट. बट तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, ऐसा क्यों? कहता यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, व्हाट इज माय नेम. व्हाट शुड दैट सिग्निफाई? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी फ्रेंड? क्यों भाई? फ्रेंड बनाने से पहले क्या मुझे आपकी पूरा मतलब की डिटेल्स लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, मीन्स यू कैन टेल योर नेम अगर आप चाहो तो. डेरी ओनली, इट इज डायरेक्ट, लेकिन मुझे डेरी अच्छा लगता है. इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड. कहता है लेकिन मैं आपका फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा. तो कोई बात नहीं. आई माइट नेवर कम, यू माइट नेवर सी मी, देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड. फिर तो मैं आपका दोस्त नहीं हूँ ना. कहता क्यों? हाउ कुड? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, यू माइट इवन स्पीक टू देम, बट यू नेवर सी देम अगेन. इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स. कहते हैं हम हजारों लोगों को मिलते हैं और वो लोग हमारे आगे पीछे आते हैं, फिर हम दोबारा उनसे नहीं मिलते, वो हमारे दोस्त हो गए. कहता है क्या वो हमारे दुश्मन है? नहीं ना. नहीं नहीं, मतलब वो तो सिर्फ लोग हुए ना. वो तो पीपल आर जस्ट नथिंग. दे आर सम पीपल आई हेट. कहता है दैट डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड. एसिड ओनली बर्न्स योर फेस. ये बहुत अच्छा फ्रेज है, क्लास 12. मतलब उनका उसके कहने का मतलब है कि भाई इस तरीके की तुम जब सोच रखते हो ना लोगों के लिए, तो वो तुम्हारे लिए एसिड से भी ज्यादा खतरनाक है. एसिड ने सिर्फ तुम्हारा चेहरा किया था, लेकिन ऐसा मतलब कि कीपिंग सच थॉट्स जो है, दैट विल डिस्ट्रॉय योर पर्सनालिटी. द ओनली कहता लाइक बॉम्ब कैन ओनली ब्लू अप माई leg. There is worse things can happen. You can burn yourself away inside. कहता after I had come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital. He would have better off like himself. She thinks blind people only ought to be other blind people, idiot to be with other idiots. बेटा मैं जब घर आया था ना मेरे को चोट के बाद, तो मेरे को किसी ने बोला था
इसको अपने जैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए। लोगों को लगता है अंधों को अंधों के साथ, पागलों को पागलों के साथ रहना चाहिए। कहता है जिनके पार पैर नहीं है उनके साथ। कहता हाँ। कहता व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड बी, सोचो, अंधे अंधों के साथ रह रहे हैं, गूंगे गूंगों के साथ रह रहा है, कैसी दुनिया होगी। कहता अच्छी होगी, एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू weren't like them। मिस्टर लैम उसको फिर समझाता, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेस, मतलब तुम और वो बराबर, जस्ट बिकॉज तुम दोनों देखने में हो। एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। भाई सबकी अपनी एक स्टोरी होती है। देयर इज अ स्टोरी ऑफ एवरी वन। इवन इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड एंड यू आर ऑल्सो ब्लाइंड, दोनों का सेम स्टोरी नहीं है। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? कहते कैसे करते हो? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। कहता काश मेरा भी ऐसा घर होता, एक ऐसा गार्डन होता। कहता यहाँ आ जाओ, बट ये मेरा नहीं है ना। कहता जो तुम चाहते हो वो आपका, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, सो आई कुड कम हियर इवन इफ यू आर आउट। कहता हाँ बिल्कुल। सो दैट नीडंट स्टॉप यू, यू डोंट नीड माइंड। आई, it would stop them, they would mind me when they saw me here, they look at my face and run। लोग मुझे देखते हैं, मुझे देखकर भागते हैं। कहता दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क। ये रिस्क आपको लेना है। अगर इफ यू वांट टू कम आउट, इट इज यू, nobody else can push you। You might have me lose all other your friends because nobody wants to stay near if they can help it। वो कहता है हो सकता है कि मैं यहाँ पे आ जाऊं तो आपके बाकी लोग चले जाऊं। कहता है, "No, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव नॉट मूव, मतलब इट डजंट मैटर मी। When I go down the street, the kids shout, lay me lamb, but they still come on the ground into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should be they? Because I'm not afraid of them। कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं नीचे जाता हूँ मुझे चिढ़ाते हैं, लेकिन वो यहीं पर वापस आते हैं। तो इट डजंट। कहता डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन अ वॉर? हाँ। हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर गेट द क्रैप? कहता ओ देयर इज लॉट ऑफ थिंग आई हैव लर्न टू डू, प्लेंटी ऑफ टाइम, ईयर्स आई टेक इट स्टेप। तो मैंने धीरे धीरे, आई टेक इट स्टडी मतलब ग्रेजुअली आई लर्न। इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। कहता हो भी तो सकता है ना कि तुम्हें चोट लग जाए, तुम मर जाओ। हाँ। फिर वो कहता मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। कहता हाँ, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट इज 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, आई एम 14। बट फिर भी उनको उनको पूछना होता है मैं कहाँ हूँ। पीपल वरी, नो पीपल फस, गो बैक एंड टेल। होता 3 मील। कहता हाँ हमारे पास पैर है। वंस आई गॉट दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। अब यहाँ पर अगेन इज द इम्पोर्टेंट वन, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। दिस इज द डिफरेंस क्लास 12। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो आपको आने नहीं देंगे, नहीं आप खुद नहीं आना चाहोगे। यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। कहता है डेरी को गुस्सा आ जाता होता है, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। ओनली यू नो दैट, तो है वो तो तुम ही जानते हो भाई। इफ आई चोज, इफ यू चोज, आई डोंट नो एनीथिंग बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। कहता सिर्फ अगर तुम चाहो तो, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं नहीं तुम्हें बोलूंगा, ये तुम्हें ही करना है। दे टेल मी, डू यू हैव टू अग्री? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine like this garden. You could find out। बेटा मुझे नहीं पता मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, लेकिन कुछ तो मुझे ऐसा ही चाहिए जैसे तुम्हारे पास है। जब पता करो हाउ। वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर, गोइंग देयर, मतलब एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एक्सप्लोर करो, तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें खोजना पड़ेगा। नोबडी कैन टेल यू व्हाट यू वांट। आई हैव टू सी टू द बीज। फिर वो कहता है कि सो डू, सब लोग तुमसे ऐसे ही बात करते हैं? तो कुछ करते हैं कुछ नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ। कहता आई डोंट बिलीव इन दैट, आई डोंट बिलीव एनीबडी एवर कम्स, यू आर ऑल हियर बाय योरसेल्फ, मिजरेबल, नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। कहता मुझे तो नहीं लगता कोई यहाँ पर आता, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को तुम्हारे जिंदा या मरने से कोई फर्क पड़ता है। मतलब जैसा तुम्हें सोचना सोचो। ऑल राइट, फिर बताओ फिर कौन आता है? Tom, Dick, or Harry. Now, let me tell you here, class 12, what is the meaning of Tom, Dick, and Harry? These are the characters of Tom Sawyer. These are actually the characters of Adventures of Tom Sawyer.
लेकिन जो यहाँ पर टॉम डिक और हैरी जो है ना, इट इज नॉट यूज्ड एज अ नेम, दिस इज नॉट यूज्ड एज अ नेम, इट इज एन अल्यूजन, ये एक अल्यूजन है। एंड ये यहाँ पर यूज हुआ, उनका कहने का मतलब है कि एनी नेम, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना ऐरा गैरा, एनी वन, कुछ भी बोल लो भाई, टॉम डिकी और हैरी। फिर वो कहता है आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, बोला आई थिंक यू आर डस्ट, मतलब मेंटल, पागल, बोला क्रेजी, बोला हाँ सोच लो, व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। कहता हाँ भाई, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट अ बर्न फेस, दैट्स पीपल अदर पीपल्स एक्सक्यूज। तुम्हें सिर्फ एक्सक्यूज बनाना आता है, तुम्हें नहीं आना है तो तुम मुझे पागल बोल रहे हो। तुम्हें तुम्हारा जो चेहरा मतलब कि बर्न है, तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो वो तुम दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हो। कहता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली, आई एम डेविड। वो कुछ नहीं बोलता, वो चला जाता। नो डोंट, आई लाइक इट हियर। वो कहता आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लैक, आई विल बी बैक। अब डेरी को गुस्सा आ जाता है, बोलता देखो मैं वापस आता, देखो तुम, क्योंकि मिस्टर लैम गुस्सा होकर चले जाते हैं। मिस्टर लैम, देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो व्हाट वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट देम, नेवर डू कम बैक। यहाँ पर एक बार पेपर में आया था कि एट व्हाट पॉइंट was मिस्टर लैम सॉरी, किस पॉइंट पर वो दुखी हुए थे, सॉरी हुए थे। जब डेरी ने कहा कि मैं वापस आऊंगा, तब उसने कहा सब बोलते हैं मैं वापस आऊंगा, लेकिन कोई वापस नहीं आता। ही फील्स सैड, ही फील्स लोनली, वो अकेला महसूस करता है। अब डेरी अपने घर जाता है। यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, मतलब देर इज अ प्लेस जहाँ उसकी मदर से वो बता रहा होता है, वो अपनी मदर को कि वो वापस जाएगा, तो उसकी मम्मी कहती तुम्हें नहीं, तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता है, you shouldn't believe all you hear. मतलब being told wrong, we are not lived here 3 months, but I know there is to know and you are not to go back there. तो उसकी मम्मी उसको वार्न करती है, तुम वापस नहीं जाओगी। मतलब व्हाट यू आर अफ्रेड, एक बूढ़ा आदमी जो एक बड़े से घर में रहता है ना, जिसमें कर्टेन है, कुछ नहीं है, आई वॉन्ट टू बी देयर, सिट लिसन, बेटी क्या, बी सिंगिंग, टॉकिंग, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और वो तुमसे क्या बात करेगा, थिंग्स दैट मैटर, things nobody else has ever said, things I want to think about, वो चीजें जो मेरे बारे में, जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। then you stay here, do your thinking, you are better off, तो कहते फिर यहीं बैठकर सोचो। I hate it, you can't help the things you say, I forgive you, it is bound to make you feel bad things and say them, I don't blame you। उसकी मम्मी को लगता है वो अपने पैरों से, मतलब अपने मुंह से परेशान है, कहता मैं समझ सकती हूँ, कहता it has got nothing to do with my face, what I look like, I don't care, and it isn't important, it is what I think, feel, what I want to see, find out here, and I'm going back only to help him with crab apples। कहता है मेरे चेहरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे बारे में क्या कोई सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मुझे ये देखना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या महसूस होता है। उसकी मदर उसको रोकती है, बट ही मूव्स, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट, ये जो लाइन है, दिस शोज दैट ही हैड कंप्लीटली चेंज्ड। अब वो अंदर घुसता है, वहां मिस्टर लैम जो है, ही इज पुलिंग अप द क्रैब एप्पल्स, स्टेडी, दैट इज गॉड, दैट इज ऑल, और एप्पल्स गिर रहे होते हैं, और तभी अ क्रीक, एक टूटने की आवाज आती है, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, अ थंब, जोर से आवाज आती है नीचे गिरने। द ब्रांच स्विशेस बैक, पूरा ब्रांच बाहर आता है। फिर गा शाम, और डेरी तभी भाग भाग के आता। यू सी, आई केम बैक, यू सेड आई वुडेंट, दे सेड बट आई केम बैक, देखो मुझे रोका था लेकिन मैं देखो वापस आ गया, देखो मैं वापस आ गया। लेकिन मिस्टर लैम, मिस्टर, लेकिन जब वो देखता है, झुकता है, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर मिस्टर लैम, कोई बात नहीं मैं हूं। लेकिन Derry begins to weep because Mr. Lamb is dead. But before he
dies, he changes the exact nature of Derry towards life. Will Derry get back to his old seclusion, or will Mr. Lamb's association effect a change on his life? This is the theme. वो वापस नहीं जाएगा बिकॉज मिस्टर लैम ने उसको समझाया है. He has given him the insight of life कि what life is not what others think. Life is what we think. So this is all in the chapter on the face of it. A very good chapter, a very nice chapter, because in our life, many a times we feel we have so many incidents which actually shakes us, that shake us from inside. हमें shake करता अंदर से. We are moved. Sometimes we become hopeless. And most of the time we look at the world from others' point of view. First of all, we need to look into the world from our own point of view. And this chapter is really, really very relevant to all of us. From board point of view, जो ये पहला question है, this has come in the exam many a times. In which section Mr. Lamb displays sight of loneliness and disappointment? अभी मैंने आपको बताया था ना, जब वो चला जाता है तो उसको लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा. सब लोग बोलते हैं लेकिन कभी नहीं आता. वो पॉइंट ये वही वाला है. The actual pain or inconvenience caused by physical impairment is often much less than the sense of alienation. मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसको चोट लगती है या किसी के साथ कोई मिसहैप होता है तो उससे जो दर्द होता है ना, दैट कैन बी ओवरकम. लेकिन जो लोगों का जो एटीट्यूड हो जाता है उसकी वजह से, वो जो लोग बेचारा करके देखते हैं, when people are sympathetic, that actually hurts. Oh my God. क्योंकि वो हमें होपलेस, वो हमें डिसेबल्ड की जो एक परिभाषा है ना, वो हमारे ऊपर आ जाता है. क्योंकि हम अंदर ही अंदर फील करते हैं कि वी हैव बिकम अ बर्डन. एंड एट दैट टाइम what kind of behavior people expect? Definitely empathy, not sympathy. Empathy means to understand, and accordingly take the actions. क्योंकि जब हम किसी को ये बात कहते हैं ना, ओ यू कैन नॉट डू दिस, चलो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तो दैट इज वेयर यू आर पॉइंटिंग आउट दैट पर्सन इज इनकेपेबल. But if we understand it, okay, for some time let me do it, then you are going to be on your feet. If we are having a positive attitude towards them, if we make them understand that we are with them, not mocking them, तो वो समझ सकते. तो यहाँ दोनों जो है, that is Derry who had a burnt face and Mr. Lamb who had a tinned leg, had been secluded by the society, but such people are supposed to be accepted. तो जो हमारा इस चैप्टर का मेन थीम है, पहला ऑप्टिमिज्म, एंड सेकेंड इज एक्सेप्ट व्हाट यू आर, डोंट think what others think, see what you want. That is a chapter on the face of it, written by Suzanne Hill.